Hello everyone. Welcome to my lecture number 7, which is on tensile test on mild steel. So, this is also one of the most important concept of strength of material, not only in strength of material, but in various structural engineering concepts. Right now, we are having design of steel structures. In that also, this graph plays a very important role, right? And let it be even structural analysis. In that also, you will be coming across this graph. So in college also we might have performed this test, and but sometimes we don't actually understand what this graph tells us. This graph tells us hell number of things, right? From which numerous questions can be formed. So today we'll be discussing this whole graph, each and every point. Okay. So, since it's an tensile test on mild steel, so this is the specimen, right? This is a specimen which is tested in UTM, right? This is Universal Testing Machine. Okay. So this specimen is pulled with the on the from the help of the universal testing machine from both the this grip lengths. These two are the grips. This will be placed in the UTM holders, and a tensile force will be applied to elongate them. Okay, and only we'll be considering this portion. Okay, this is the gauge length where the necking and the failure will occur. ठीक है. हम लोग ये वाला पार्ट में कंसिडर नहीं करेंगे. जो भी डिफॉर्मेशन भी होगा सब, जो भी कुछ होगा सब इस पोर्शन में होगा जो मैंने शेड करके लिखा हुआ है. ठीक है. सपोज इस स्पेसिमेन का डायमीटर 5 है, तो ये जो गॉज लेंथ एल है, इट विल बी इक्वल टू 5 5. ओके, 5 5. Okay, if the diameter is d, so gauge length will be L is equal to 5d. Okay, and this specimen is taken accordance to IS 1608. Okay, IS 1608. So, from the application of load, that is tensile load, till its failure, okay, we take several points, okay, and we plot the stress strain curve. Okay, so we get this such kind of graph. So this is a bit exaggerated view to explain you. Otherwise, these points are very like close to each other. This all A, B, C points are very close to each other. But to make you familiar with this points, it's shown bit exaggerated. Okay. So now let's understand this whole graph. This is a stress strain graph. Okay, stress versus strain. Okay, this is the origin. Now first, the graph varies linearly, okay, up to the point A, right? So here A point is the proportionality limit. So we know that we have learned Hooke's law. That Hooke's law, in Hooke's law, stress is proportional to strain up to, mind it, up to the proportionality limit, right? So a straight line will be coming up to the point A, right? Now you might see that from A to B, it might seem to you as a straight line, but it's not a straight line. It's instead a curved line. Mind it, it's a curved line from A to B. So here, since it's not linear, therefore Hooke's law will not be valid here. So this B point is denoted as the elastic limit. Okay. So up to this point, it's the elastic limit. Okay. Now, from B to C, when it goes, at point C, it's called as the upper yield point. Okay, and point D is called the lower yield point. Now let's forget what is upper yield point, what is lower yield point. First, let's understand what is yielding. Okay, so yielding is a point from which a material starts transforming into a plastic nature. Okay, प्लास्टिसिटी में जाना शुरू कर देता है, मतलब डिफॉर्म होना. वो ये जो मटेरियल है डिफॉर्म होना, परमानेंट डिफॉर्मेशन के तरफ जाना शुरू कर देता है. परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलने से मेरा ये मतलब है कि यदि उसमें से लोड हटाएंगे तो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगा. यदि वो बी पॉइंट तक है, इलास्टिक लिमिट तक है, तो ये आप लोड हटाइएगा तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. लेकिन यदि ये यील्ड पर पहुंच गया और यील्डिंग स्टार्ट हो गई, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा. इंस्टेड इट विल स्टार्ट डिफॉर्मिंग. ओके, so there are 2 points actually, C and D. So
very important point, very important point, that only mild steel has two yield points. Okay, so any other material has only one yield point, but only mild steel has two yield point, that is upper and lower. It's a very important objective question or interview question also, that which is the material which only has two yield points. Now C is the upper yield point, D is the lower yield point. Let's understand this 2 points. Now here at C, this is the upper yield point, and here the actual yielding starts. Okay, actual yielding starts, खींचना शुरू होता है, but we are not considering this as an yield strength. ठीक है, yield strength इसको नहीं मानेंगे. ठीक है, अब जब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा D पॉइंट पे, जब यील्डिंग पूरा शुरू हो जाएगा, तब इसको हम मानेंगे डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, ये यहाँ पे ये इसका मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सी पॉइंट पे ये सारे मटेरियल के लिए वैरी करेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा उस मटेरियल के लिए. सपोज माइल्ड स्टील ये है और यदि दूसरा हम Fe410 लेंगे तो उसका भी यही आएगा, अलग अलग आएगा. ठीक है, लेकिन ये जो डी पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है. जैसे उसका स्ट्रेंथ क्या हुआ, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं Fy इज इक्वल टू 250 MPa, तो ये डिनोट करता है. ठीक है, तो जब भी हम यील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सपोज ये आपका एफ वाई होता है. ठीक है, तो जब भी हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं तो वो लोअर यील्ड पॉइंट को डिनोट करते हैं, ना कि अपर यील्ड पॉइंट को. ठीक है, तो जैसे सपोज फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी शायद सबको पता हुआ क्या होता है, कि जैसे हम लोग तो बहुत सारा एजम्पशन लेके सॉल्व एनालिसिस करते हैं. ठीक है, लेकिन फील्ड पे वो एनालिसिस, मतलब वो एजम्पशंस ट्रू वैलिड नहीं रहते. ठीक है, तो जो हमारे एक्चुअल यील्ड स्ट्रेंथ है, जो हम लोग ने एजम्पशंस लेके किए हैं, ठीक है, वो जो वर्किंग स्ट्रेस है, जो एट प्रेजेंट उस साइट पे, उस स्ट्रक्चर पे लग रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली उस स्ट्रक्चर पे जो स्ट्रेस आ रहा है उससे बहुत कम होता है. जो मतलब हम लोग का स्ट्रेंथ होता है, जो एजम्पशन से हम लोग लेते हैं, वो वर्किंग स्ट्रेस से, सॉरी, ग्रेटर देन वर्किंग स्ट्रेस. ठीक है, तो इसी के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर माइल्ड स्टील इज इक्वल टू लोअर यील्ड स्ट्रेंथ. क्यों लोअर यील्ड स्ट्रेंथ मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यही आपका यील्ड स्ट्रेंथ देता है डिवाइडेड बाय द वर्किंग स्ट्रेस, क्योंकि ये ज़्यादा है. ठीक है, ये ज़्यादा और ये कम है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा ज़्यादा ही रहेगा. ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे है. तो यहाँ तक तो आप समझ गए यील्ड पॉइंट तक. इसके बाद हम बात करते हैं यील्ड प्लेट्यू के बारे में. तो यील्ड प्लेट्यू की बात करें तो डी से ई पोर्शन के बीच में रहेगा. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेस कांस्टेंट है. ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ पे ये. ठीक है, लेकिन स्ट्रेन, दैट इज डिफॉर्मेशन, बढ़ते जा रहा है, यील्डिंग बढ़ रहा है कंटिन्यूसली. तो इसलिए इसका यील्ड प्लेट्यू नाम दिया हुआ है, कि बिना किसी स्ट्रेस के ये कांस्टेंट लाइन है. क्योंकि आपको पता है जैसे ये हिल है, ठीक है, और ये इसको प्लेट्यू बोलते हैं. ठीक है, इसको प्लेट्यू बोलते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसलिए इसका नाम भी यील्ड प्लेट्यू दिया गया है. ठीक है, अब ई पॉइंट पे आता है, ई से एफ. तो ये जो रीजन है, ये रीजन, ये स्ट्रेन हार्डनिंग है. स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों? स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब मटेरियल और हार्ड हो रहा है. ठीक है, स्टिफ हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़े से डिफॉर्मेशन के लिए आपको कितना स्ट्रेस ज़्यादा लगाना पड़ रहा है. यहाँ पे नहीं था, थोड़ा स्ट्रेस है तो उतना ही स्ट्रेन हो रहा है. लेकिन यहाँ पे है कि थोड़े से स्ट्रेस के लिए आपको मतलब थोड़े से स्ट्रेन के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है. तो इस बीच में ई एफ में मटेरियल और स्टिफ हो रहा है. ठीक है, और कोशिश कर रहा है अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे जाने के लिए, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अपने अल्टीमेट वैल्यू पे पहुंच जाऊं, जो एफ है. ठीक है, तो एफ इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है. ठीक है, इसके बाहर उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगा. ये एफ यू से डिनोट करते हैं, इसका ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है. अब जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे आ गया, तो उसके बाद एक डिप देखेंगे आप ग्राफ में, एफ जी पोर्शन में. तो इसको बोलते हैं नेकिंग. नेकिंग इसी रीजन में होगा, गॉज लेंथ में ही होगा. ये जो सब ये मटेरियल है, तो ये मटेरियल खींचते जाएगा थोड़ा. ठीक है, मतलब टूटने के कगार पे होगा. ठीक है, और जी पॉइंट पे फाइनली जैसे जी पॉइंट पे पहुंचेगा, वो टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, द मटेरियल विल फेल. एंड द मैकेनिज्म ऑफ फेलियर इज
कप एंड कोन मेथड ऑफ मैकेनिज्म, मतलब इस टाइप में ये फेल होगा। ऐसे नहीं कि आधा आधा सिर्फ टूट जाएगा, ये एक साइड से थोड़ा कप जैसे निकले रहेगा और ये एक कोन जैसा अलग हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, मतलब क्यों ऐसे हो रहा है ये बियॉन्ड हमारे स्कोप है अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कप एंड कोन फेलियर मैकेनिज्म होगा। तो यही पूरा ग्राफ का एक्सप्लेनेशन था हर एक पॉइंट का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।